یہ ذکر ہے ان لمحوں کا۔ دیکھو تو ذرا اسے، سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یادداشت پر خوف محسوس ہوا، بڑی مشکل کا سامنا ہے۔ بالکل ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، ان کے چہرے پر تکلیف اور پسینہ صاف نظر آتا ہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم فراموش نہ کرو گے۔ جہاں لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو۔ وہاں اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی۔ یہ آیت ہے سورہ الاعلیٰ کی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ مکی زمانے کے بالکل اول دور میں جب قرآن کا پہلا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا تھا، اس وقت تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ مکہ والو اس کی بات مت سننا، دیکھو تو ذرا اسے، سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو۔ اسلام کو نیو ریلیجن سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے تھے اور قرآن کو جادو کہتے تھے۔ جو نازل ہوتی ہے محمد پر، نہیں مانتے ہم اس کتاب کو، وہ کوئی کتاب نہیں، جادو ہے محمد کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو وہ بہت ہی بھاری اور مشکل وقت ہوتا تھا۔ وحی کا آنا کوئی عام بات نہیں تھی، یہ آسمانی کلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ میں ایک انسان ہوں، کہیں اللہ کے کلام کا کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ نہ جائے یا میں بھول نہ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ قرآن کو یاد رکھنا صرف اپنی یادداشت اور کوشش پر ڈیپینڈ ہے، اسی لیے وہ بہت زیادہ پریشر محسوس کرتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے اور آیتیں سنانا اسٹارٹ کرتے تو منظر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام شروعات ہی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے فوراً ان الفاظ کو دہراتے۔ اس جلدی کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ پہلے حصے کو پکا یاد کر لیں، اس سے پہلے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگلا حصہ سنائیں۔ آپ کو ڈر تھا کہ چپ چاپ سنتا رہا تو پہلا حصہ ذہن سے نکل جائے گا۔ یہ کوشش اتنی شدید ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے تر ہو جاتے تھے اور چہرے پر پریشانی آ جاتی تھی۔ اللہ پاک اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف اور فکر دیکھ رہا تھا، تو اللہ پاک نے چاہا کہ وہ اپنے نبی کو اس بوجھ سے آزاد کر دے۔ تب اللہ پاک نے سورہ الاعلیٰ کی یہ آیت نازل کی، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله۔ ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی قرآن کو یاد رکھنا، اسے آپ کے دل میں بٹھانا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ عام انسان بھول سکتے ہیں لیکن اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی یادداشت کو ایسا کر دیں گے کہ آپ ایک بار سننے کے بعد اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ اب آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ خاموشی سے سنیے، اس کو یاد کروانا ہماری قدرت میں ہے۔ اب اس میں الا ماشاء اللہ کا راز کیا ہے؟ اس کے اگلے حصے میں اللہ پاک نے فرمایا مگر جو اللہ چاہے وہ آپ بھول جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے بھول جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب ایبروگیشن سے تھا، یعنی اللہ اگر خود چاہے کہ کوئی پرانی آیت ہٹا دی جائے یا اس کا حکم بدل دیا جائے تو اللہ پاک وہ آیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے مٹا دے گا، لیکن جو اللہ پاک قائم رکھنا چاہے گا وہ کبھی نہیں بھولو گے۔ یہ سورہ نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بدل گیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش چپ چاپ بیٹھ کر سر جھکا کر صرف وہی سنتے تھے، آپ زبان نہیں ہلاتے تھے۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان کے ساتھ وہی الفاظ اسی طرح دہرا دیتے تھے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے۔ اور یہ ایک معجزہ ہے کہ ایک امی جنہوں نے دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک ہزاروں آیتیں سنی اور ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، کیونکہ ٹیچر
खुद अल्लाह था। आमतौर पर दुनिया का रूल यह है कि जो मेहनत करेगा वो याद करेगा, लेकिन यहाँ अल्लाह पाक ने उस कायदे को बदल दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेहनत आप मत कीजिए, जिम्मेदारी हम लेते हैं। इससे दो बातें साफ होती हैं। अल्लाह पाक नहीं चाहता था कि उसके महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा सी भी तकलीफ या स्ट्रेस न रहे। वही का बोझ पहले ही बहुत भारी था, उस पर भूलने का डर एक अलग बोझ था, और अल्लाह ने वो बोझ हटा दिया। कुरान सिर्फ दिमाग में सेव नहीं किया गया, उसे अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में महफूज कर दिया। जब चीज सीने में उतर जाती है तो वो इंसान की फितरत बन जाती है। इस हिस्से में अल्लाह पाक ने अपनी 4 बड़ी सिफातें, क्वालिटीज बयान की हैं जो कायनात के निजाम को चलाते हैं। खलका फसव्वा, पैदा किया और संवारा। अल्लाह पाक ने चीजें सिर्फ पैदा नहीं की बल्कि उन्हें परफेक्ट शेप भी दी। किसी इंसान को देखें, उसकी आंखें वही लगाई जहाँ से देखना आसान हो, नाक वही लगाई जहाँ से सांस लेना आसान हो। हर जानवर और हर परिंदे को उसके माहौल के हिसाब से उसे जिस्म दिया। यह है संवारा जाना। कदरा फहादा, तकदीर बनाई और रास्ता दिखाया। अल्लाह पाक ने हर चीज का एक रोल फिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, शहद की मक्खी को किसने बताया कि जाकर फूलों का रस चूसना है और फिर छत्ता बनाना है? ये अल्लाह पाक की दी हुई हिदायत है जो उसने हर मखलूक के अंदर डाल दी है। अब खेती की मिसाल ही देख लीजिए। अल्लाह पाक ने फरमाया, हमने चारा, हरी भरी घास उगाई, फिर उसे काला कूड़ा करकट बना दिया। ये सिर्फ घास की बात नहीं है, ये इंसान की जवानी से बुढ़ापे की मिसाल है। जैसे खेती पहले हरी और ताजा होती है, फिर सूख कर काली और बेकार हो जाती है, वैसे ही इंसान की जवानी भी ढल जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप लोगों को समझाते रहें। पहले वो जो डर गए वो ही नसीहत कबूल करते हैं, और दूसरे बदबख्त। कुरान ने उसे अशका कहा है, सबसे बड़ा बदबख्त। ये वो लोग हैं जो सच सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और दुनियावी फायदे के लिए दीन से मुंह मोड़ लेते हैं। जहन्नुम में उनका हाल बयान किया गया। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, फिर वो वहां न मरेगा न जिएगा। मौत इंसान के लिए रेस्ट, आराम होती है, लेकिन वहाँ मौत नहीं आएगी कि दर्द खत्म हो, और जिंदगी ऐसी नहीं होगी कि जिसे जिंदगी कहा जा सके, सिर्फ तकलीफ होगी। ये एक सस्पेंडेड स्टेट ऑफ पेन होगी। आजकल हम समझते हैं कि बड़ा घर और पैसा कामयाबी है, लेकिन सूरे आला ने सक्सेस की डेफिनेशन ही बदल दी। कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को पाक कर लिया। कुफ्र, जलन, कीना और लालच को निकाल देना। जिसका दिल साफ है वही अल्लाह की नजर में कामयाब है। सिर्फ दिल साफ करना जरूरी नहीं, उसके बाद एक्शन भी जरूरी है। वज़करा अस्म रब्बी फसल्ला, और अपने रब का नाम लिया और फिर नमाज पढ़ी। अल्लाह ने साथ ही साथ बीमारी भी बता दी। बल तु'थिरून अल हयात दुनिया, बल्कि तुम लोग दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ये हिस्सा बताता है कि इस्लाम कोई नया दिन नहीं है, बल्कि ये वही सच है जो शुरू से चला आ रहा है। ये सूरे का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा है। अल्लाह पाक ने यहाँ इस्लाम की तारीख को हजारों साल पुराने दौर से जोड़ दिया है। सुहूफ, क्या है सुहूफ? कुरान में सुहूफ का लफ्ज यूज हुआ है, प्लूरल ऑफ सहीफा। इसका मतलब होता है स्क्रॉल्स या छोटी किताबें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कोई बड़ी किताब जैसे कुरान या तौरात नाजिल नहीं हुई थी, बल्कि उन पर सहीफे उतरे थे जिनमें नसीहत की बातें थी। आज वो असली सहीफे दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन कुरान ने उनकी सबसे इम्पोर्टेंट बातों को यहाँ महफूज कर दिया। अब सवाल है कि क्यों जोड़ा गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम? क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी और अल्लाह के लिए अपना सब कुछ छोड़ देने, तवक्कुल की मिसाल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के खिलाफ सच बोलने यानी शरीयत, लॉ की मिसाल है। अल्लाह पाक ये बताना चाहता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना हो या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, सच हमेशा एक ही रहा है। और वो सच क्या है? सच ये है, बल तु'थिरून अल हयात दुनिया, तुम दुनिया को तरजीह देते हो, वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत बेहतर और हमेशा रहने वाली है। इससे ये साबित हो गया कि दीन इस्लाम की बुनियाद एक नया इनोवेशन नहीं है। जो मैसेज आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, वही मैसेज आज से हजारों साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया था, यानी तौहीद, वननेस ऑफ गॉड और आखिरत की फिक्र इंसानियत का सबसे पुराना सबक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सूरे से एक खास लगाव था। इसके पीछे की हिकमत समझना जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब सहाबा बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरे बहुत पसंद थी। वजह ये थी कि इस सूरे की पहली ही आयत में अल्लाह की तस्बीह सब्बिहिस्म रब्बिकल आला है, जो बंदे को अपने रब के बहुत करीब कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा और ईद की नमाज
नमाज में जहाँ सारा शहर जमा होता था इस सूरे को पढ़ते थे। इसकी वजह यह थी कि इन मौकों पर लोग दुनिया के काम से हटकर आते थे, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि सब लोग ये मैसेज सुन लें कि दुनिया टेम्परेरी है और असली कामयाबी आखिरत है, ताकि वो घर वापस जाते वक्त दुनिया में न खो जाए। इस सूरे का सफर कुछ ऐसा है। शुरुआत अल्लाह की तारीफ से हुई जिसने सब कुछ बनाया और बैलेंस किया। बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आप घबराएं नहीं, दीन फैलाना और वही का याद करवाना हमारा काम है। हकीकत क्या है, इंसान को आईना दिखाया गया कि तुम दुनिया के पीछे पागल हो जबकि वो कूड़ा करकट बन जाएगी। इंजाम क्या है, असली हीरो वो है जिसने तस्किया किया। और यही बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में लिखी थी। आज हमें लगता है कि कुरान 1400 साल पुराना है, लेकिन कुरान कहता है कि जो बात मैं आज बता रहा हूँ वो सिर्फ आज के लिए नहीं है। हजारों साल पहले जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, या जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को ललकारा, उनके पास जो सहीफे थे उनका निचोड़ भी यही था। सूरह अल आला की आखिरी आयत इस बात की गवाह है। यानी ये मैसेज पुराने सहीफों में भी लिखा था, और वो मैसेज क्या था? यही कि दुनिया धोखा है और आखिरत ही हमेशा रहने वाली है। जमाना बदला, नबी बदले, लेकिन सच आज भी नहीं बदला। अब सवाल यह है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौमों ने ये बात भुला दी तो क्या हम याद रखेंगे? अब हर आयत का तर्जुमा और डिटेल आसान लफ्जों में समझते हैं। पहली आयत, सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला, अपने उस रब के नाम की पाकी बयान करो जो सबसे आला है। जब हम सजदा करते हैं उस वक्त हम सबसे नीचे होते हैं जमीन पर, उस वक्त हम कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे आला है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हम कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, लेकिन सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह का है। दूसरी आयत, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, जिसने पैदा किया फिर उसे ठीक ठाक बैलेंस किया। अल्लाह पाक ने सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया बल्कि उसे परफेक्ट किया। एक आंख बड़ी और एक आंख छोटी नहीं बनाई, हाथों को पैरों की जगह नहीं लगाया, हर चीज को सव्वा परफेक्ट प्रोपोर्शन में बनाया। अब आती है तीसरी आयत, वल्लज़ी क़द्दर फहदा, और जिसने तकदीर अंदाज मुकर्रर की फिर रास्ता दिखाया। अल्लाह पाक ने हर चीज का रोल फिक्स किया, ये तकदीर है, और फिर उसे वो रोल निभाना सिखाया। ये एक हिदायत है, जैसे कछुए के एक छोटे बच्चे को किसने बताया कि पैदा होते ही समुद्र की तरफ जाना है। ये अल्लाह की दी हुई हिदायत है। अब आती है चौथी आयत, वल्लज़ी अख़रजल मरअा, और जिसने चारा उगाया। अब आती है पांचवी आयत, फजअलहु गुसाअन अहवा, फिर उसे काला कूड़ा करकट बना दिया। यहाँ जिंदगी की हकीकत बयान की गई है। पहले खेती हरी भरी होती है जैसे इंसान की जवानी, और फिर वो सूख कर कूड़ा बन जाती है और काली पड़ जाती है जैसे इंसान का बुढ़ापा और मौत। अल्लाह बता रहा है कि तुम्हारी दुनिया की चमक दमक बस कुछ दिन की हरियाली है। आयत नंबर 6, सनुक़रिउका फला तंसा, ऐ नबी हम आपको पढ़ा देंगे फिर आप नहीं भूलेंगे। जैसा पहले बताया कि ये अल्लाह का वादा था कि कुरान को याद रखना ये आपकी टेंशन नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आयत नंबर 7, इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख्फा, सिवाय जो अल्लाह चाहे बेशक वो जानता है जो खुला है और जो छुपा है। जो अल्लाह चाहे का मतलब है अगर कोई हुक्म अल्लाह वापस लेना चाहे तो वो आपके जहन से निकाल देगा और बाकी महफूज रहेगा। आयत नंबर 8, वनुयस्सिरुका लिलयुसरा, और हम आपके लिए आसान तरीका मुहैया कर देंगे। दीन को, शरीयत को और कुरान को आसान बना देंगे ताकि उसे फॉलो करना बोझ न लगे। आयत नंबर 9, फذक्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख्शा, तो आप नसीहत करते रहिए अगर नसीहत फायदा दे। यहाँ अगर का मतलब शर्त नहीं है बल्कि ये बताना है कि जहाँ लगे कि लोग सुनने वाले हैं वहाँ जोर दें। आपका काम सिर्फ याद दिलाना है, मनवाना नहीं। आयत नंबर 10, वयतजन्नबुल अश्क़ा, और उस नसीहत से वो दूर भागेगा जो बड़ा बदबख्त है। अश्का वो बदनसीब है जिसे सच्चाई दिख रही है लेकिन अपनी जिद की वजह से वो मुंह मोड़ रहा है। अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, जो बड़ी आग जहन्नुम में दाखिल होगा। थुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, फिर वो वहाँ न मरेगा न जिएगा। ये बहुत खौफनाक हालत है। मौत आती तो दर्द खत्म हो जाता, जिंदगी होती तो कुछ सुकून मिलता। ये बीच की हालत है, सिर्फ दर्द होगा, राहत का एक पल भी नहीं।
قد أفلح من تزكى بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا. کامیابی پیسہ نہیں ہے, کامیابی تزکیہ ہے. آیت نمبر 15. وذكر اسم ربه فصلى اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی. صرف دل صاف کرنا کافی نہیں, عمل نماز بھی ضروری ہے. عید کی نماز میں بھی پہلے صدقہ فطر تزکیہ دیا جاتا ہے, پھر نماز پڑھی جاتی ہے. آیت نمبر 16. بل تؤثرون الحياة الدنيا بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. آیت نمبر 17. والآخرة خير وأبقى حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ہم 60 سال کی زندگی کے لیے محنت کرتے ہیں اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کو بھول جاتے ہیں. آیت نمبر 18. إن هذا لفي الصحف الأولى بے شک یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی ہیں. آیت نمبر 19. صحف إبراهيم وموسى ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. یہ وہی پرانا سچ ہے جسے اللہ شروع سے بتاتا آ رہا ہے. آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں, اور مجھے بتائیں کہ میں اس کے بعد کون سی سورہ پر ویڈیو بناؤں. پلیز سبسکرائب. اللہ حافظ.